A very good morning, everyone. Today, Morning, ma'am. I welcome you all on behalf of CQS Training Private Limited in the guest lecture on e-commerce and tax on e-commerce and analysis. I wish to welcome CA Mr. Ram Akshay, a fellow chartered accountant and indirect tech specialized with more than 15 years of ample experience. Expertised in GST, e-commerce, customs, all India VAT, and service tax law. He has worked extensively for Fortune 500 clients, and he is an author of best-selling book E-commerce Operators. Now, I would request him to share his views and enlighten us all. Please welcome, sir. Hello, good morning, good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hope you can listen me properly, right? Yes, sir. Of course. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, can you give me right for screen sharing? Yes, sir. Please share Yes, your sir. screen. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Now it's Yes, sir. So, as you listen, today we are going to discuss what is e-commerce and some tax impact on e-commerce transactions. So, first of all, we will complete this session in phased manner. First, we'll understand what is e-commerce. And after that, we'll understand what is the scope of e-commerce in India. And then we'll discuss about the tax on e-commerce transactions or e-commerce operators, say. And after that, we'll have a question answer session for 5 to 8 minutes approx. Is it right? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, okay, thanks. So first of all, we are going to discuss what is e-commerce. About me, जैसे I think Hindi is okay, or you want to listen in English? We are comfortable in both the language. Okay, fine. So for the sake of more audiences, we'll discuss in Hindi or somewhere कभी-कभी बीच-बीच में हिंदी में English में करें. Yes. So as I said कि पहले हमें e-commerce समझना है कि e-commerce होता क्या है. देखिए ये e-commerce एकदम न्यू टर्म है in terms of business सिनेरियो और कम्युनिटी, और आप कह सकते हो कि बिजनेस सेक्टर में पहले ई कॉमर्स इज नथिंग. ई कॉमर्स पहले आपने पढ़ा होगा अपने क्लासेस में कि व्हाट इज कॉमर्स. कॉमर्स इज नथिंग बट अ बिजनेस, परचेज, सेल, जो भी है इट इज कॉल्ड बिजनेस. सिमिलरली ई कॉमर्स मीन्स जो बिजनेस आप पहले फिजिकल वे में करते थे उसी को यदि आप इलेक्ट्रॉनिक वे में कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स. So what is e-commerce? It has been defined by many organizations including WTO, World Trade Organization ने भी define किया है e-commerce transactions. So what is e-commerce? It has been defined by WTO as e-commerce is the production, distribution, marketing, sale or delivery of goods and services by electronic means. समझ में आ रहा है? Means पहले जो भी आप खरीद बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल, परचेज, व्हाटएवर आप किया करते थे, ऑर्डर देना लेना, वो सब मैनुअल होता था, फिजिकल फॉर्मेट में होता था. अब वो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रही हैं, और इसी को इलेक्ट्रॉनिक वे में जब होती हैं तो इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं. होप इट इज क्लियर नाउ टू एवरीवन. yes, sir. Yes, sir. सो WTO ने सिंपली कहा कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन मीन्स कुछ भी नया गुड्स आप
मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मतलब कुछ नई चीजें आप बना रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब मार्केट में लेके आना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वो जो गुड्स आपने बनाया उसको मार्केट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये भी इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है। अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल के साथ कि कैसे हो रहा है। मार्केटिंग, मार्केटिंग आप देखिए सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग आजकल हो रही है। आप कहीं भी देखें, आज पहले जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था, नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड एज डिजिटल मार्केटिंग। आप देखें बहुत सारे कंसल्टेंट एजेंट्स आपको मिल जाएंगे कि आपकी डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग हम करा देते हैं। बिजनेसमैन को हमेशा ऑफर्स आते रहते हैं। आप देखें फेसबुक या किसी भी सोशल साइट्स पे, वहां पे ऑटोमेटिक जो ऐड आता है, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। सेल और डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेल मतलब एक आदमी अपनी सामान का राइट यूज पजेशन हर चीज किसी दूसरे को दे देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। डिलीवरी मतलब सामान को एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाना, उसको भी हम क्या कहते हैं, डिलीवरी कहते हैं। आपके मन में होगा कि डिलीवरी वो तो फिजिकली होती है, ऑब्वियसली फिजिकल गुड्स है तो उसकी डिलीवरी मूवमेंट भी फिजिकल वे में ही होगी, लेकिन उसके लिए जो कम्युनिकेशन वगैरह जो चैनल्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। सो ये सारे जो काम हो रहे हैं, इन सबको हम ई कॉमर्स कहते हैं ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। तो ये क्लियर है कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल और डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिजिटल फॉर्मेट्स। अब आ रहा है व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विसेज। जो गुड्स, गुड्स तो वो होता है जो डिफरेंट एक्ट्स में डिफाइंड है, मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में बता दूं। गुड्स वो होता है जो फिजिकल फॉर्मेट में होता है और जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। लेकिन सर्विसेज क्या होता है, अदर देन गुड्स जो है वो सर्विसेज होता है, ऐसा ही एक्ट में डिफाइन भी किया गया है। सो गुड्स और सर्विसेज दोनों आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रहा है। आप देखें तो आप अपना एजुकेशन भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में ले रहे हैं, तो एजुकेशन क्या है, वो सर्विस है, वो गुड्स नहीं है। आप देखें डॉक्टर से कंसल्टेंसी आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में मिल रही है, तो वो गुड्स नहीं है, दैट इज सर्विस। बट गुड्स जो है आपका सामान, लैपटॉप, बुक्स, ये सारी क्या है, गुड्स हैं, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्मेट में होती है और एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव किया जा सकता है, शिप किया जा सकता है। सो दीज आर कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ये दोनों में डिफरेंसेस आपको समझना होगा, क्योंकि आप इनके इन गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस नहीं समझेंगे तो फिर आपको आगे कॉन्सेप्ट में ज्यादा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो सर्विसेज हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ही डिलीवर हो रही है। अब आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के DPIIT डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने भी डिफाइन किया है कि ई कॉमर्स क्या होता है। तो इन्होंने भी सेम वही कहा, ई कॉमर्स का मतलब होता है खरीदना और बेचना, क्या, गुड्स और सर्विसेज, साथ में डिजिटल प्रोडक्ट्स भी। क्या, डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बताया कि सर्विसेज जो है वो तो अलग है, वो प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जो आपका सामान है, जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो डिजिटल प्रोडक्ट भी हम कहते हैं उसको, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो है डिजिटल प्रोडक्ट है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन क्या है, वो प्रोडक्ट है, इसको हम फिजिकल प्रोडक्ट नहीं कहेंगे सॉफ्टवेयर को, दिस इज डिजिटल प्रोडक्ट। सिमिलरली इसको हम कहाँ से ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से ले सकते हैं, या डिजिटल नेटवर्क से, या डिजिटल प्लेटफॉर्म से। सो DPIIT ने सिंपल कहा है कि ई कॉमर्स का मतलब है खरीदना बेचना गुड्स और सर्विसेज, साथ में डिजिटल प्रोडक्ट्स भी, किस पे, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। आप देख सकते हैं Similarly, Ministry of Electronics and Information Technology, it's a department of government of India, not department, it's a ministry. इन्होंने भी डिफाइन किया, इन्होंने कहा कि ई कॉमर्स क्या है, वो एक बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल का एक प्रकार है, और ये जो है ये सब कुछ इनेबल करता है, डिलीवरी या खरीद बिक्री जो भी है वो सारी चीजें इनेबल करता है डिजिटल फॉर्म। आप इसको, इसका मीनिंग निकालेंगे तो यही मीनिंग निकलेगा। और इस सबसे इंपॉर्टेंट वाली इन्होंने थोड़ा सा स्कोप इनलार्ज करके कह दिया कि सारे टाइप की डिलीवरी जो है वो ई कॉमर्स में हो सकती है, चाहे वो किसी भी टाइप का बिजनेस हो, B2B, B2C, व्हाटएवर, C2C एक्सेट्रा। CGST एक्ट ने भी डिफाइन किया ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को या ई कॉमर्स को, उन्होंने भी सेम वही कहा। मतलब आप देखेंगे तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इवन एक्ट, सबको यही कह रहा है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज का खरीद बिक्री आप यदि डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स।
आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया। किसी की कोई क्वेरी है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में? हेलो, No, sir, this is clear to all of us. क्लियर तो? ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। अब हमें ये समझना है कि जो अभी तक का जो फोरकास्ट रहा है डिजिटल ई कॉमर्स का, वो क्या रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसके बारे में क्या सोचती है, क्या स्कोप है। जब तक आपने समझा ई कॉमर्स क्या है, अब समझना है कि ई कॉमर्स का स्कोप क्या है। सो इसमें हमारा एक IBF है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। दे सेड कि ई कॉमर्स जो मार्केट है वो 2026 तक ग्रो हो करके $200 बिलियन तक पहुंच जाए। जो इनका रिसर्च था उसमें 2017 में ये जो बिजनेस था वो 38.5 बिलियन US डॉलर ही था। तो आप समझिए, जो 2017 में 38.5 बिलियन US डॉलर था, वो बढ़ करके 2026 में $200 बिलियन होगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब से कोविड पैंडेमिक आया है, COVID-19, तब से ई कॉमर्स का स्कोप और ज्यादा बढ़ गया है, और थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ गया। सो ये एस्टिमेट, ये पहले का रिसर्च था। अब जो है, अब रिसर्च नए तरीके से चल रहा है, और एक रिसर्च के मुताबिक तो केवल मार्च आप देखेंगे 2020 में ही जो ई कॉमर्स का सेल था वो 25% बढ़ा था। जैसे ही पूरे वर्ल्ड में कोविड फैला, तो सारी सेल, परचेज, डिलीवरी, एवरीथिंग, वो सब कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के में होने लगा। मतलब वो फिजिकल मूव, सेल, परचेज वगैरह सब खत्म हो गया। सारे परचेज, सेल्स ऑर्डर, सारे परचेज ऑर्डर ई कॉमर्स के थ्रू होने लगे। डिफरेंट मेनी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं वो मार्केट में आ गए। मैं बताऊंगा व्हाट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, वो भी आपको बताऊंगा। बट ये स्कोप देखिए कितना वास्ट स्कोप है। मैं तो कहूंगा कि आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ई कॉमर्स सेक्टर दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आप देखेंगे कि ई कॉमर्स सेक्टर का रिसर्च है कि 2024 तक सेल्स जो है वो 599 बिलियन US डॉलर तक पहुंचा है। अब एक और आई ओपनर जो रिसर्च है वो ये कह रहा है कि 2017 में जो इंडिया का GDP में जो ई कॉमर्स मार्केट का जो कंट्रीब्यूशन था वो था 0.76%। गॉट इट? 0.76%। इट वाज लेस देन 1%। इसका कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% था इंडिया के GDP। एंड यू नो, ये जो एस्टिमेट है, ये जो ई कॉमर्स सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की GDP में, वो बाय 2030 इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 2.5% तक पहुंच जाएगा। ये रिसर्च है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब बताइए, इतना वास्ट स्कोप है और इस पे किसी का फोकस ही नहीं है। इस पे, ये ऐसा सेक्टर है कि फ्यूचर भी यही है एक तरह से देखा, except certain exceptions. In coming days, e-commerce will be the lifeline of Indian GDP. Not Indian GDP only, it will be lifeline of global GDP. आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में, आपको एक और बात बता दूं, आज के टाइम में इवन बिल्डिंग मटेरियल्स जो हैं, जैसे सीमेंट, रॉड, रोरी, ये सब की डिलीवरी भी ई कॉमर्स के थ्रू होने लगी है। मीन्स आप ऑर्डर करते हैं प्लेटफॉर्म पे जाके, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उसकी डिलीवरी आपको घर बैठे बैठे हो जाती है। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती डीलर के पास। सो ये सारी फैसिलिटीज हैं और इतने फायदे हैं, आपका टाइम, एनर्जी, हर चीज बचाता है। सो आने वाला जो टाइम है वो ई कॉमर्स के लिए ब्राइट है, और ई कॉमर्स ही सस्टेन करेगा इन द कमिंग डेज। अब फिर एक ई कॉमर्स, जैसे हमने अभी बताया इकोनॉमी लार्जर स्केल पे देखा, आप थोड़ा सा सब सेगमेंट में भी आए तो देखें कि ग्रोसरी मार्केट में भी ई कॉमर्स एक्सपैंड हो रहा है। आजकल आप हर ग्रोसरी मार्केट जो भी है, दाल, चावल, आटा, सब्जी, हर चीज आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आपके पास डिलीवरी आपके घर तक पहुंच जाती है।
सो आप देखिए हर चीज की डिलीवरी हो रही है, प्रॉपर तरीके से हो रही है और वो आपको मिल रहा है। और ये इसकी जो ग्रोथ है, रफ्तार है, बहुत ही फास्ट है। रिसर्च के मुताबिक इसकी जो ग्रोसरी मार्केट जो बढ़ रहा है वो एट अ CAGR ऑफ 57% बढ़ रहा है। कंपाउंडेड ग्रोथ रेट जो है उसका 57% है। इट्स अ ह्यूज। और कोविड ने तो इसमें और 4 चांद लगा दिया। ई रिटेल मार्केट भी आप देखें, उसका CAGR जो ग्रोथ की रफ्तार है वो कंपाउंडेड रफ्तार 30% से ज्यादा है। अब हमें ये देखना है कि ये पॉसिबल हो कैसे पा रहा है। ये इंडिया की रफ्तार है। ये पॉसिबल हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए ई कॉमर्स सेक्टर में कि मतलब ज्यादा तो नहीं, मैं थोड़े बहुत मैंने लिस्ट डाउन किया है, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव लॉन्च किया, सबसे पहले तो उन्होंने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया। डिजिटल इंडिया का क्या है, व्हाट इज डिजिटल इंडिया? इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ ई कॉमर्स सेक्टर। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इनोवेशन फंड, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब देखिए जो हम बातें कर रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ने खुद मार्केट प्लेस बनाया, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस बनाया। तो ये सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए, जिसकी वजह से रफ्तार जो है पहले से दोगुनी तिगुनी हो गई है। और इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में एक बूम आ गया है। प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। हर चीज आप देखिए, पेमेंट, जो पैसे का लेन देन है, सब आजकल UPI से हो रहा है, भीम से हो रहा है। हम बैंक नहीं जाते अब, हमारा सारा पैसा इलेक्ट्रॉनिक मोड में पड़ा हुआ है अकाउंट में। हम वहां से जब मर्जी जब चाहे आप हम पेटीएम से, फोन पे से, UPI से, भीम से हम पे कर सकते हैं। देखिए ये है रिवॉल्यूशन नाउ। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब इंडिया में ई कॉमर्स रिवॉल्यूशन आ चुका है और एवरी सेक्टर में आ चुका है। ये नहीं कि केवल सर्विस में आया है, ये नहीं कि केवल पेमेंट सेक्टर में आया है, मनी ट्रांजेक्शन में आया, ये हर सेक्टर में आया आगे। हाँ, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, वो ट्रांजेक्शन या खरीद बिक्री जो हम करते हैं, पहले हम क्या करते थे, एक बाजार होता था, कोई भी एक मार्केट होता था, वहां पे सेलर जो है अपनी शॉप खोल के बैठता था, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिस्प्ले करता था, और हम जो बायर है वो हम जाके वहां से खरीदते थे। सो वो फिजिकल मार्केट था, एक सेलर्स होते थे और बायर्स वहां जाके खरीदते थे। इसी को इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब अब जो मार्केट जो एक फिजिकल प्लेस होता था, दिल्ली का चांदनी मार्केट होता था, वो ऐसा नहीं है। अब ये मार्केट इलेक्ट्रॉनिक हो। आप देखिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स, स्विगी, जोमेटो, ये सारे क्या है, दीज आर मार्केट प्लेस। लेकिन ये मार्केट प्लेस में ई मार्केट प्लेस है। मतलब पुराने वाला जो ट्रेडिशनल मार्केट था, ये वो मार्केट नहीं है, दिस इज ई मार्केट प्लेस, दिस इज कॉल्ड ई मार्केट प्लेस। सो यहाँ पे देखेंगे सारे सप्लायर्स जो है, मतलब जो भी गुड्स बेचना चाहते हैं या सर्विसेज सप्लाई करना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो वहां पे जाके अपनी लिस्टिंग कराते हैं उस मार्केट पे, प्लेटफॉर्म पे। और वो जो मार्केट है वो कमीशन, एक स्मॉल छोटा सा कमीशन चार्ज करता है एज ए इनकम। आप उसको कमीशन देते हैं और फिर उसको डिस्प्ले आप करते हैं। और जो कस्टमर्स हैं वो फिर वो अपना मार्केट प्लेस ऐड करते हैं, फिर कस्टमर्स वहाँ रीच करते हैं, लॉग इन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और जो प्रोडक्ट या सर्विसेज अच्छा लगता है वहां से ऑर्डर कर देते हैं। तो देखिए जो फिजिकल मार्केट था वो अब कन्वर्ट हो गया ई मार्केट प्लेस। ये रिवोल्यूशन है। आपको आप फिजिकली जाना नहीं है बाजार में, आप अपने घर में बैठे बैठे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। सो वो जो प्लेटफॉर्म है, जो ई मार्केट प्लेस है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म को जो ऑपरेट, उसका जो मालिक है, उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो मालिक है, ऑनर है, उसको हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। सो ये कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब क्या है, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। और इनके जो ऑनर है, जो कंपनी इनको रन कर रही है, दे आर कॉल्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। अब देखिए
इनके जो फीचर्स हैं ई कॉमर्स बिजनेस के, वो ब्रीफली मैं जरा आपका समझा दूं। ये जो फीचर्स हैं, ये है इनका तो एक ग्लोबल ऑपरेशन। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ के इंटरनेट के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप वहां पे अपने अपने सामान का ऑर्डर कर सकते हैं। सेलर अपने गुड्स या सर्विसेज को वहां पे लिस्ट करा सकता है और ग्लोबली डिस्प्ले करा सकता है। इतने फायदे। सॉरी, 24/7 अवेलेबिलिटी है। आप सुबह 5 बजे, रात को 10 बजे, 11 बजे, जब चाहें आप अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई दुकान जो है 9 से 5 बजे तक खुलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। 24/7 अवेलेबिलिटी है ई कॉमर्स मार्केट। चलो देखिए कितना, पहले जो 10 घंटे दुकान खुला होता था, 8-9 बजे से खुलता था, रात को 9-10 बजे तक, अब देखिए वो 24 आवर्स हो गया एंड 24/7 हो गया। पहले वीक में या मंथ में एक बार कभी एज पर ट्रेड एसोसिएशन वो बंद भी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप जब चाहें ऑर्डर कर सकते हैं, जब चाहे सप्लायर्स जो लिस्टेड हैं उनको ऑर्डर आ सकता है सप्लाई के गुड्स या सर्विस। नेक्स्ट फीचर्स क्या है? नेविगेशन ईजी है। आप अपने बैठे बैठे मोबाइल में या अपने वेबसाइट पे लैपटॉप से कहीं से भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या जो सप्लायर की वेबसाइट है वहां पे लॉगिन करके चेक करके प्रोडक्ट सर्विसेज को ऑर्डर कर सकते हैं। इतने सारे फायदे हैं। आगे इजी कंपैरिजन है। आप ऐसा नहीं है कि आपको 10 दुकान में जाके अपने प्रोडक्ट्स को देखेंगे, फिर एक जो पसंद आएगा उस दुकानदार के पास जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप घर बैठे बैठे मोबाइल में 10 प्रोडक्ट एक बार में स्क्रीन पे देख करके कंपेयर कर करके ऑर्डर ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया फैसिलिटी है ये ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस। ये सारी फैसिलिटी पहले नहीं होती थी। इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। आप जब चाहे जिसके यहाँ पे चाहे जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना है, कस्टमर केयर पे कॉल करिए या ऑनलाइन ही अपनी क्वेरी डालिए, आंसर आपको मिल जाएगा। सो इतनी सारी फैसिलिटीज और फीचर्स हैं कि वो लिस्ट आउट करें तो मतलब एंडलेस है। ये मेजर मेजर जो चीजें हैं वो हमने आपके लिए रखी है। चलिए अब आते हैं, थोड़ा समझते हैं कि ये ई कॉमर्स के टाइप्स कितने हैं। देखिए ई कॉमर्स के टाइप्स वही होते हैं जो पहले ट्रेडिशनल टाइप्स हुआ करते थे, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में हुआ करता था। सेम इसमें भी इतने प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस भी होता है। जैसे बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक कंपनी अपने माल या प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनी को बेच रही है। जैसे कंपनी XYZ है, वो अपने माल को कंपनी ABC को बेच रही है। सो दीज आर कॉल्ड B2B बिजनेस। दूसरा है B2C बिजनेस, मतलब एक कंपनी है XYZ, वो अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बेच रही है, एंड कंज्यूमर को बेच रही है। सो वो कंज्यूमर का मतलब हो गया वो फर्दर आगे उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा, वो खुद कंज्यूम कर रहा है। देखिएगा जरा डिफरेंस समझना आसान समझना जरूरी है कि व्हाट इज B2B एंड व्हाट इज B2C। B2B में एक कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को किसी और कंपनी को बेचती है, वो कंपनी फिर उसको कंज्यूम करती है नए प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, या वो आगे उसका ट्रेडिंग करती है। सो ये बिजनेस टू बिजनेस हो गया, मतलब एक बिजनेस दूसरे को सेल कर रहा है, दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा है, ना कि कंज्यूमर को। एक और ये शॉर्ट में हम इसको B2B कहते हैं। नेक्स्ट है B2C, यानी बिजनेस जो है अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल कर रहा है, एंड कंज्यूमर को सेल कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? B2C कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक कैमरे का, आपने एक मोबाइल को ऑर्डर किया, एप्पल मोबाइल ऑर्डर किया आपने, तो एप्पल कंपनी ने उस मोबाइल को आपको बेचा और आप इसको सेल्फ यूज करना चाह रहे हैं। आप इसे फर्दर किसी को और बेचना नहीं है, आप अपने लिए आपने खरीदा है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांसफर। होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, आप भी एक कंज्यूमर हैं, हम दोनों बिजनेस नहीं करते, लेकिन मैं अपना सामान आपको बेच रहा हूँ। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे OLX है, आपने सुना होगा कि आओ और बेच दो। कार्स 24 है, ये क्या करते हैं? ये हमसे ही हमारी कार्स को या हमारे पुराने प्रोडक्ट को खरीदते हैं और किसी और कंज्यूमर को भी डिस्प्ले करते हैं और उसको अच्छा लगता है तो आके खरीदते हैं। इसको हम कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर।
सिमिलरली कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, जैसे मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को कोई भी सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा ज्यादा डीप में है, बस ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट इतने टाइप समझ लें, मेजर आपको समझना था B2B, B2C एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और भी ये उसके सब टाइप्स हैं बेसिकली। अब कंज्यूमर जो है अपनी सर्विसेज किसको दे रही है, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड C2G। दूसरा है G2C, जैसे गवर्नमेंट अब कंज्यूमर को दे रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविन ऐप देखिए, कोविन ऐप क्या कर रहा है, गवर्नमेंट जो है डिफरेंट सर्विसेज अपने कंज्यूमर भारत की जनता को प्रोवाइड कर रही है कि आप यहाँ पे लॉग इन करें, रजिस्टर करें और जाके वैक्सीन लगवाएं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर टू गवर्नमेंट बिजनेस। सिमिलरली गवर्नमेंट टू बिजनेस, अब गवर्नमेंट जो है बिजनेस को डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। डेफिनेटली आप देखें, जैसे उमंग ऐप है, उस ऐप पे लगभग हर फैसिलिटी है, PF ESI डिफरेंट पोर्टल्स है, तो वो गवर्नमेंट कह रही है बिजनेस को आप, जैसे इनकम टैक्स पोर्टल आप ले लीजिए, GST पोर्टल ले लीजिए, आप रिटर्न फाइलिंग वगैरह करते हैं कोई भी कंपनी या बिजनेस, वो वहाँ लॉग इन करता है और अपने रिटर्न फाइल करता है, पेमेंट करता है, जो भी है टैक्स भरता है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट टू बिजनेस, जो IT पोर्टल वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, GST पोर्टल। सिमिलरली कंज्यूमर टू बिजनेस, अब जैसे मैं कंज्यूमर हूँ, मैं बिजनेस को अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ कंज्यूमर टू बिजनेस में समय आप इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे Naukri.com का जो ऐप है, आप अपने आप को लिस्ट करते हैं और फिर बिजनेस जो है वो आपको हायर करती है, तो ये भी एक एग्जांपल है कंज्यूमर टू बिजनेस का। सिमिलरली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपस में ही ट्रांजेक्शन करती है, वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का। हाँ, एक और मैं बता दूं, हाँ चलिए आगे है, बिजनेस टू गवर्नमेंट भी है, बिजनेस टू गवर्नमेंट, यानी बिजनेस जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू गवर्नमेंट। और हाँ, तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस टाइप्स थे, पहले होते थे, आज भी हो रहे हैं, ई-कॉमर्स में भी हो रहा है, और इसको हम आगे अभी और देखते हैं कि बेसिकली ई-कॉमर्स में मॉडल्स कितने। सो कमिंग टू मॉडल्स ऑफ ई-कॉमर्स, ये आपका मेन है, ये मॉडल मैं विद एग्जांपल आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, ई-कॉमर्स बिजनेस के डिफरेंट मॉडल्स हैं, उसमें पहला मॉडल है मार्केट प्लेस मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल का बेस्ट एग्जांपल जो मैं बताऊं तो वो है अमेजन, फ्लिपकार्ट, दिस इज कॉल्ड मार्केट प्लेस मॉडल। इसमें क्या होता है कि कंपनियां अपना एक मार्केट वेबसाइट बनाती है, जैसे कि अमेजन ऐप है, फ्लिपकार्ट ऐप है, या इनकी वेबसाइट्स है, ये एक फिजिकल मार्केट की जगह इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनाती है, और सप्लायर्स को इनवाइट करते हैं और कस्टमर्स को इनवाइट करते हैं, और दोनों अपना खरीद बिक्री जो भी समझौता है वो यहाँ पे करते हैं, जो भी सेल परचेज सप्लाई डिलीवरी वो है उसके थ्रू होता है। दिस इज कॉल्ड मार्केट प्लेस मॉडल, यानी यहाँ पे वेरियस सप्लायर्स भी आते हैं, वेरियस कस्टमर्स आते हैं, और आकर के अपना जो भी परचेज सेल जो भी करना है वो यहाँ पे होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। नेक्स्ट, मतलब मार्केट प्लेस में बहुत सारे सप्लायर होंगे और बहुत सारे कस्टमर होंगे, ध्यान दीजिएगा डिफरेंस। दूसरा है फुलफिलमेंट सेंटर मॉडल। ये फुलफिलमेंट सेंटर मॉडल में क्या होता है कि जैसे अमेजन है, आपने सुना होगा कि अमेजन ने यहाँ पे बड़ा सा अपना वेयर हाउस खोल दिया, अपने बड़े सारे फुलफिलमेंट सेंटर खोल दिए। आजकल कॉमन मतलब डिजिटल लैंग्वेज में इसको फुलफिलमेंट सेंटर कहते हैं, पहले वेयर हाउस कहते थे ट्रेडिशनल लैंग्वेज में, अब इसको हम फुलफिलमेंट सेंटर कहते हैं। सो इसमें क्या होता है, जैसे अमेजन है, उसने एक सब्सिडरी बनाई और उन्होंने फुलफिलमेंट सेंटर खोल दिया, मीन्स वेयर हाउस खोल दिया, और कह दिया कि सारे सप्लायर्स जो है अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे इकट्ठा कर सकते हैं, वहां स्टोर कर सकते हैं, और जो भी सप्लाई डिलीवरी लोडिंग अनलोडिंग जो भी है वो थर्ड पार्टी एजेंसी आगे करेगी, और मार्केट प्लेस भी हम ही दे रहे हैं। सो मार्केट प्लेस जैसे अमेजन की वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, वो मार्केट प्लेस तो दे ही रहे हैं, साथ में स्टोरेज फैसिलिटी भी दे रहे हैं, यानी स्टोरेज फैसिलिटी मींस इन द नेम ऑफ फुलफिलमेंट सेंटर दे रहे हैं। सो उसमें सप्लायर जो है अपना प्रोडक्ट वहां स्टोर करते हैं फॉर द सेक ऑफ इजी सप्लाई या डिलीवरी जो भी है टू द कस्टमर्स, वो वहाँ स्टोर करते हैं, और थर्ड पार्टी एजेंसी होती है वो सारे काम लोडिंग अनलोडिंग सप्लाई डिलीवरी लॉजिस्टिक्स एवरीथिंग मैनेज करती है। और ऑर्डर कहाँ पे आता है, अमेजन की वेबसाइट पे आता है, और उनका फुलफिलमेंट सेंटर में वहां से क्या हो जाता है, शिपमेंट वहां से स्टार्ट हो जाता है। सो दिस मॉडल इज कॉल्ड फुलफिलमेंट सेंटर मॉडल।
इनफैक्ट फुलफिलमेंट सेंटर में आप कहेंगे तो मार्केट प्लेस मॉडल भी इम्पोर्टेंट, लेकिन एडिशनली क्या आ गया यहाँ पे, स्टोरेज फैसिलिटी दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल में मार्केट प्लेस और फुलफिलमेंट सेंटर दोनों क्लब करके जो मॉडल बनता है, जैसे मैंने बताया कि कई बार ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं वो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना दे ही रहे हैं, साथ में फुलफिलमेंट सेंटर भी दे रहे हैं, साथ में बहुत सारे सप्लायर्स की लिस्टिंग भी करा रहे हैं। सो इट्स अ मिक्स ऑफ मार्केट प्लेस मॉडल एंड फुलफिलमेंट सेंटर मॉडल। सिमिलरली एजेंसी मॉडल में आप देखेंगे कुछ नहीं है, एजेंसी मॉडल में सिंपल ये है, जैसे कोई सप्लायर है वो कहता है किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को कि भाई मेरा सामान ये डिलीवरी कर दो, ऑर्डर मेरे बिहाफ पे ले लो, कलेक्शन मेरे बिहाफ पे कर दो, लेकिन डिलीवरी मेरे लिए आप कर दो। तो वहाँ पे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो एज ए एजेंट ऑफ सप्लायर काम करता है, तो इसको एजेंसी मॉडल कहते हैं। इन्वेंट्री मॉडल भी कुछ नहीं है, ट्रेडिशनल टाइप का मॉडल है कि मेरा एक अपना बिजनेस है, जैसे एबीसी कंपनी है, उसका अपना बिजनेस है, उसने अपना वेयर हाउस बनाया और अपने वेयर हाउस में स्टोर कर रहा है, अपना ऑनलाइन वेबसाइट बना लिया, वेबसाइट से ऑर्डर आया और उसको ऑर्डर की का फुलफिलमेंट कर रहा है, उसकी डिलीवरी ऑर्डर शिप कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री मॉडल। चलिए अब आते हैं सर्विस एग्रीगेटर मॉडल। देखिए सर्विस एग्रीगेटर्स मॉडल जो है, दिस इज बेसिकली फॉर सर्विस डिलीवरी या सर्विस प्रोविजन। यहाँ पे क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख लीजिए, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ये सब क्या है, ये दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सर्विस एग्रीगेटर्स मॉडल्स। सो अनलेस आप इन सब में डिफरेंस नहीं समझेंगे तब तक आप थोड़ी सी टैक्स वाला जो पार्ट है वो ज्यादा समझ में नहीं आएगा। सो इसलिए मैं इस पे इतना टाइम दे रहा हूँ कि सर्विस एग्रीगेटर मॉडल का एग्जांपल हो गया ओला, उबर हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया। इसमें क्या होता है कि जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं, जैसे जोमेटो पे सारे रेस्टोरेंट्स लिस्टेड है, स्विगी पे लिस्टेड है, ओला पे क्या है, जितने टैक्सी ड्राइवर्स हैं या टैक्सी ओनर्स हैं उन्होंने अपनी लिस्टिंग करा रखी है और कस्टमर्स वहां पे आते हैं और उस सर्विस वो अवेल करते हैं। तो सर्विस एग्रीगेटर मॉडल जो है बेसिकली इट इज ओनली फॉर द सर्विस प्रोवाइडर्स। तो सर्विस प्रोवाइडर्स इवन जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स भी कह सकते हैं फॉर फूड डिलीवरी जो है वो उसके लिए भी जैसे जोमेटो कर रहा है, स्विगी कर रहा है, तो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें हो रही है सर्विस एग्रीगेटर्स मॉडल्स में। तो होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन बिफोर टैक्सेबिलिटी एक बात समझ लेते हैं कि जैसे कोई बिजनेस है, अब जैसे आपने एक छोटा सा अपना काम स्टार्ट किया लेकिन आपने वेबसाइट बना ली, क्योंकि आप वेबसाइट बनाना आज ज्यादा कॉस्टली अफेयर नहीं है, आप इजिली अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। सो आपने अपनी वेबसाइट बना ली और वेबसाइट बना करके आपने अपने प्रोडक्ट्स को की लिस्टिंग करा दी और वहाँ पे ऑर्डर आ रहा है, कंज्यूमर या जो भी बायर है वहाँ पे ऑर्डर देता है आपको और आप अपने शिप करते हैं। तो क्या ये जो आप अपने वेबसाइट से शिपिंग कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस किसी जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस में अपनी लिस्टिंग नहीं कराई लेकिन अपनी वेबसाइट से शिपिंग कर रहे हैं, अपने वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हैं, तो क्या आप ई कॉमर्स ऑपरेटर कहे जाएंगे या नहीं कहे जाएंगे? क्या आपका ये जो बिजनेस है ये ई कॉमर्स कहलाएगा? डेफिनेटली कहलाएगा, लेकिन इसके तरीके अलग हो जाते हैं। वेबसाइट और मार्केट प्लेस दोनों अलग है। ई मार्केट प्लेस में है कि हजारों सप्लायर्स हो सकते हैं और हजारों लाखों कस्टमर्स हो सकते हैं। आपकी वेबसाइट में फर्क ये है कि आप अकेले सप्लायर हैं उसमें, लेकिन कस्टमर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये डिफरेंस है। सो टेक्निकली आपका वेबसाइट भी ई कॉमर्स बिजनेस के दायरे में आता है, लेकिन वो ई मार्केट प्लेस के डेफिनेशन में फॉल करेगा फॉर द एज ए जनरल कॉमन सेंस यदि आप देखें तो ये फॉल करेगा। लेकिन यदि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो जीएसटी लॉ ने जो डिफाइन किया है मार्केट प्लेस को या ई कॉमर्स ऑपरेटर को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑन वेबसाइट इसमें क्वालिफाई नहीं करता है। सो इवन दो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू डिलीवरी कर रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, बट फॉर द पर्पस ऑफ जो जीएसटी कंप्लायंस है, जीएसटी में जैसे कंप्लायंस है कि यदि आप ई मार्केट प्लेस हैं तो ई मार्केट प्लेस के जो ऑनर हैं यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो हैं उनको टीसीएस डिडक्ट करना होता है सप्लायर्स को पेमेंट करने के टाइम।
सो वो TDS डिडक्ट करने का जो कंप्लायंस है वो आपका यदि अपना वेबसाइट है, आप एज ए ई मार्केट प्लेस फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे होता ये है कि ई मार्केट प्लेस में जैसे हमने बताया कि कस्टमर होता है, सप्लायर होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस होता है। उस जो GST एक्ट का कंप्लायंस है वो उनके लिए है। लेकिन आपके केस में ओन्ड वेबसाइट है, तो ओन्ड वेबसाइट में आप देखें तो ई मार्केट प्लेस है, आपका अपना वेबसाइट है, लेकिन कस्टमर, सप्लायर और ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है यहाँ। आप ही सप्लायर भी हैं और आप ही ओनर भी हैं वेबसाइट के। सो टेक्निकली सेक्शन 52 ऑफ GST एक्ट अप्लाई नहीं होता यदि ओन्ड वेबसाइट है और आप अकेले कर रहे हैं। यू आर नॉट वर्किंग एज एन ई मार्केट प्लेस। आपका ऑनलाइन चैनल है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के दायरे में फॉल कर रहे हैं आप, लेकिन आपके लिए TCS कंप्लायंस, जो कंप्लायंस है अंडर GST लॉ, वो एप्लीकेबल नहीं होता है। सो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया क्योंकि आप डर जाएंगे कि आगे जो हम टैक्स का कंप्लायंस डिस्कस करने वाले हैं कि हम, मेरा अपना वेबसाइट है तो फिर मुझे TCS करना ये वो, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं होगा, आपका अपना वेबसाइट है, आप अकेले उस पर बेच रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आपके बाकी सारे लॉ एप्लीकेबल होंगे, लेकिन TCS जो अंडर सेक्शन 52 ऑफ GST लॉ कंप्लायंस है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। सो अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज या जो इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए तो दैट विल बी सिंपल कंप्लायंस, बट फॉर इंडिविजुअल पर्सन दिस में बी डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आइए ब्रीफली अब हम जानते हैं, अब हम अभी तक हमने समझा कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स का फ्यूचर कैसा है, किस रफ्तार से बढ़ रही है, और ई कॉमर्स ऑपरेटर किसको कहते हैं, फिर ई कॉमर्स के कितने टाइप्स होते हैं, फिर हमने देखा कि ई कॉमर्स के कितने मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो मॉडल्स भी हमने देखा कि मार्केट प्लेस मॉडल है, सर्विस एग्रीगेटर्स मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल है, एजेंसी मॉडल है, फुलफिलमेंट सेंटर मॉडल है, ये सारे मॉडल्स वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं डिफरेंट मॉडल्स पे जो GST जो टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, वो जो एप्लीकेबल होता है वो कैसे एप्लीकेबल होता है, वो जरा सा हम समझ लेते हैं। सो जैसे अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने मेंशन किया कि सेक्शन 52 ऑफ CGST एक्ट कहता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को TCS कलेक्ट करना है। वो TCS कितने परसेंट से? 1% TCS कलेक्ट होता है इन केस ऑफ इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन। सो वो कलेक्ट करना होता है किससे? सप्लायर से वो कलेक्ट करते हैं। जब सप्लायर को पेमेंट, एक्चुअली जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो क्या करते हैं, सप्लायर के बेहाफ पे जो पेमेंट है वो कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि आपने जब भी कोई गुड्स से ऑर्डर किया, आपने अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी, तो आपने देखा होगा कि वहां पे वो आप पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना डिजिटल मोड में या जैसे भी कैश कलेक्ट करता है, जो एजेंट आता है डिलीवरी वो जमा कराता है, फिर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने यहाँ पे कलेक्शन करके एक टाइम पे वो सप्लायर्स को पेमेंट करती है आफ्टर डिडक्टिंग हिज ओन कमीशन और जो भी खर्चे हैं। सो ये पेमेंट का मूड होता है और सप्लाई का मूड होता है। सो यहाँ पे क्या है, जब वो पेमेंट करते हैं सप्लायर्स को ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फ्लिपकार्ट का लेते हैं, फ्लिपकार्ट ने, आपने एक बुक मंगाया आपने, तो आपने पेमेंट कर दी बुक की, या तो प्री पेमेंट किया या आपके पोस्ट सप्लाई आपने पेमेंट किया। वो पैसा जब पेमेंट करेगा फ्लिपकार्ट सप्लायर को, फॉर एग्जांपल भारत लॉस है, उसको जब पेमेंट करेगा तो वहां पे वो 1% TCS कलेक्ट करेगा। लेकिन ये जो TCS कलेक्ट करना होता है, इसमें कई सारे इफ एंड बट्स हैं, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, बट आपको उतना डिटेल में जाना नहीं है। समरी में ये समझना है कि यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, जो मार्केट प्लेस के ऑनर्स हैं, ई मार्केट प्लेस के ऑनर्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऑनर्स हैं, उनको सप्लायर्स को जब भी पेमेंट करेंगे तो उनको TCS डिडक्ट करना होता है। मैक्स TCS का रेट क्या है? 1%, और यदि इंटरस्टेट है तो CGST 0.5% एंड SGST 0.5% ऑन द नेट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। सो जो भी पेमेंट उनको फाइनली सप्लायर को देना होता है, उसमें से वो अपना TCS कलेक्ट करके और उसको गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। जमा कब कराते हैं? पूरे महीने का TCS जो कलेक्ट करते हैं वो नेक्स्ट 10 डेज के अंदर उनको जमा कराना होता है सरकार। इसके लिए वो GSTR8 फॉर्म भरते हैं, रिटर्न भरते हैं विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस मंथ, और उसमें पूरी डिटेल देते हैं। फिर वो क्या होता है, जो सप्लायर्स हैं जिन्होंने सप्लाई किया था, उनके GSTR2M में वो डिस्प्ले होता है और उसका वो बेनिफिट
ले सकते हैं कि इतना मैंने ऑलरेडी टैक्स जीएसटी जमा करा दिया गया। सिमिलरली उनको एनुअल रिटर्न भी भरना होता है, दैट इज कॉल्ड जीएसटीआर 9B। वो साल में एक बार भरना होता है। वो भरने की जो तारीख है वो 31 दिसंबर होती है, फॉलोइंग द एंड ऑफ द ईयर। जैसे अभी 2021 का जो ईयर है, उसका जो ये जीएसटीआर 9B जो ई कॉमर्स को भरना था, उसकी लास्ट डेट क्या थी? 31 दिसंबर थी, बट ये एक्सटेंड हो चुकी है और ये 20 फरवरी हो चुकी है। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करती रहती है। चलिए अब यहाँ पे एक समरी में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स यानी ऑनर्स ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म या ई मार्केट प्लेस, उनके लिए क्या है? वो गुड्स भी सप्लाई करवाते हैं और सर्विस भी सप्लाई करवाते हैं। यदि वो गुड्स सप्लाई करवाते हैं तो एक होता है कि जैसे मैंने आपको बताया एजेंसी मॉडल, तो एज ए एजेंट वो काम कर रहे हैं, तो उनके केस में टीसीएस कलेक्ट करना नहीं होता, जो 1% जीएसटी का टीसीएस कलेक्ट करना हो तो वो नहीं करना होता। लेकिन अदर देन एजेंट जो भी जितने मॉडल्स हैं, लगभग उन सारे मॉडल्स में यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर के डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं तो टीसीएस कलेक्ट करना होता है। सिमिलरली गुड्स के अलावा यही रीजन था कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि गुड्स क्या है और सर्विस क्या है समझना आसान है और ये जरूरी था। सो गुड्स तो आपको बाई टच एंड फील आप कर ही सकते हैं गुड्स को, लेकिन सर्विसेज को टच तो कर नहीं सकते, ये इंटेंजिबल होता है। और जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विसेज कहा जाता है, लॉ ने ऐसे डिफाइन किया। सिमिलरली सर्विस के केस में एक सेक्शन है जीएसटी में, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, यदि उसके अंदर नोटिफाइड है तो उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं होता है। जैसे अब आता हूँ मैं यहाँ पे बाकी केसेस में टीसीएस कलेक्ट करना होता है, जैसे सर्विसेज, जैसे सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 का एग्जांपल। अभी आपने सुना होगा कि जोमेटो, स्विगी, इन सब पे जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है 1 जनवरी 2022 से। ये जोमेटो, स्विगी जो है ये सिमिलरली नोटिफाइड हुए हैं अंडर सेक्शन 9(5). इससे क्या होगा? ये जब नोटिफाइड हुए हैं तो इनको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, लेकिन इस केस में क्या होगा? जोमेटो, स्विगी को उनकी सर्विसेज पे इनको टैक्स देना है सप्लायर के बिहाफ। सो इसलिए आपने सुना होगा कि अब जोमेटो, स्विगी वगैरह से ऑर्डर करना थोड़ा कॉस्टली हो गया है, डेफिनेटली कॉस्टली हो गया। अब जैसे ओला, उबर है, वो भी सेक्शन 9(5) में फॉल करते हैं। तो ओला, उबर के केस में ओला जो है अपने टैक्सी चालकों से टीसीएस कलेक्ट नहीं करती है, वो टैक्सी चालकों के बिहाफ पे जीएसटी अपने इनवॉइस पे लेवी करती है और कस्टमर से लेती है और फिर गवर्नमेंट को जमा कराती है। ये दोनों में फर्क है। सो अदर देन 9(5) केसेज में टीसीएस एप्लीकेबल है। ये जीएसटी का था। कुछ एफएक्यू देख लेते हैं। व्हाट इज ई कॉमर्स? जैसे मैंने बताया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है सीजीएसटी एक्ट में भी डिफाइंड है और अकॉर्डिंगली यदि आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, आप ई मार्केट प्लेस के ऑनर हैं, किसी वेबसाइट के ऑनर हैं, तो आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर कहा जाएगा। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, अर्बन क्लैब, कोई, वीवो, मेक माई ट्रिप, ये सारे जोमेटो, स्विगी, ये सारे क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। क्या इज इट मैंडेटरी फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन? यस, ही हैज टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन और ये कंपलसरी है, लेना ही पड़ेगा। क्या टीसीएस जो है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई पे कलेक्ट होगा? एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब ये होता है जीएसटी में कि जिसपे जीएसटी लेवी नहीं होता है। जो ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज काफी सारी है जिसको नोटिफाई किया है सरकार ने, जिसपे जीएसटी नहीं लगता, तो क्या जिसपे जीएसटी नहीं लगता उस पर भी टीसीएस कलेक्ट करना है? तो आंसर इज नो। जिसपे जीएसटी नहीं लगता उस पर आपको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है, will an e-commerce operator be liable to pay tax in respect of supply of goods or services made through it instead of actual supplier? जो ये कह रहा है कि क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट से सारी गुड्स सर्विसेज सप्लाई हो रही है, तो क्या ई कॉमर्स अमेजन को या फ्लिपकार्ट को या किसी भी जोमेटो, स्विगी को टैक्स देने की जरूरत है? जो एक्चुअल सप्लायर है, यानी एक्चुअल रेस्टोरेंट है या एक्चुअल जो टैक्सी चालक है, और इन केस ऑफ ओला, उबर, यस, जो नोटिफाइड होते हैं सेक्शन 9(5), जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने डिस्कस किया, उनके लिए करना जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, ये हमने काफी अभी तक समझा है और अब जीएसटी का हमने चेक कर लिया। अब हम समझते हैं कि इनकम टैक्स में क्या लाइबिलिटी है फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को क्या करना? सो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्वालिफाई होता है ना, वो जीएसटी से अलग है।
जो जीएसटी में ई कॉमर्स ऑपरेटर का डेफिनेशन है या बाकी लॉ में डेफिनेशन है, इनकम टैक्स एक्ट में ई कॉमर्स ऑपरेटर का डेफिनेशन बिल्कुल हटके है। इनकम टैक्स एक्ट में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है उस पे इक्वलाइजेशन लेवी लगता है। कब से लग रहा है? 1 अप्रैल 2020 से लगता है। लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कौन होता है? सो नटसेल में आपको ये समझ लें, जितने नॉन रेसिडेंट यानी फॉरेन कंपनीज हैं जो जो अपना वेबसाइट या जो अपना प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रही है इंडिया में, वो नॉन रेसिडेंट को ही ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर इनकम टैक्स एक्ट कहा गया। सो आप देख सकते हैं डेफिनेशन में भी नीचे हमने पॉइंट आउट किया है इसको फॉर द सेक ऑफ एवरीबॉडी। सो वो सिंपल मीन्स अ नॉन रेसिडेंट हु ओन्स ऑपरेट और मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी, जो कि जीएसटी एक्ट में ऐसा नहीं है। जीएसटी एक्ट तो कहता है सभी के लिए, रेसिडेंट हो या नॉन, मतलब इंडिया में रहने वाला हो या विदेश में रहने वाला हो। ये कह रहा है कि इवन नॉन रेसिडेंट जो है वो उसी के लिए, उसी को ई कॉमर्स ऑपरेटर के डेफिनेशन में डाला गया है। देयरफॉर जो नॉन रेसिडेंट है उसका यदि ई कॉमर्स वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म है, वहां पे यदि कोई ट्रांजेक्शन उसको कंसिडरेशन मिलता है तो उस पे उसको इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। हालांकि बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, एग्जाम्पशंस हैं, वो भी देखने, बट ये मान के चलो जो अंडर इनकम टैक्स एक्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर यदि नॉन रेसिडेंट है तो उस पे इक्वलाइजेशन लेवी लगता है और उसको इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा। सिमिलरली इक्वलाइजेशन लेवी का एक थोड़ा सा रेट क्या है ये समझ लेते। इक्वलाइजेशन लेवी का जो करंट में जो रेट है वो 2% है, जो उनको जो ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उनको 2% इक्वलाइजेशन लेवी ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स उनको जमा कराना होता है इंडियन गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 165। अब थोड़ा सा और ब्रीफ में बता दूं, इक्वलाइजेशन लेवी जो लगा था, पहली बार आया था वो 2016 में आया था। फाइनेंस एक्ट 2016 में वो इंट्रोड्यूस किया गया था और उस पे डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स पे, कई अदर देन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स पे डाला गया था। बट लेटर ऑन इनके बाय फाइनेंस एक्ट 2020 ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन या डिजिटल ट्रांजेक्शन पे भी इक्वलाइजेशन लेवी किया गया था। सो ये तो पहले तो जो था 6% था, अब रिड्यूस करके धीरे धीरे ये 2% पे आ गया। एंड गोइंग फॉरवर्ड मुझे नहीं लगता इक्वलाइजेशन लेवी ज्यादा दिन चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक ग्लोबल कंसेंसस बन रहा है कि जैसे आपने सुना होगा ओईसीडी का पिलर 1 टैक्स, पिलर 2 टैक्स और ग्लोबल मिनिमम टैक्स आपने सुना होगा, जो 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स सारी कंपनीज को देनी होगी। ये इक्वलाइजेशन लेवी उसी की वजह से आया था, क्योंकि जो नॉन रेसिडेंट्स थे वो इंडिया में बिजनेस करते थे, सारा मार्केट इंडिया में था, इंडिया से रेवेन्यू अर्न करके चले जाते थे, टैक्स नहीं देते और डिजिटल वे में सोचिए। सो इसीलिए इक्वलाइजेशन लेवी आया था। बट धीरे धीरे अभी इक्वलाइजेशन लेवी एज पर द WTO, अभी इंडिया जो है वो नेक्स्ट 31 मार्च 2023 तक लेवी कर सकता है, कंसेंसस मिला है। सो उसके बाद लेटेस्ट सी कि क्या होता है, जैसे ही ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स लेवी होगा, सो धीरे धीरे ये जैसे सरकारें डिसाइड करें, WTO डिसाइड करे, वैसे इसका फ्यूचर है। बट ये इक्वलाइजेशन लेवी नॉन रेसिडेंट पे लगता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। हमने देख लिया जीएसटी, इनकम टैक्स देख लिया, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे या डिजिटल ट्रांजैक्शन पे कैसे लगता है। क्या कस्टम ड्यूटी भी लगता है क्या ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पे? ये इट्स अ बिग क्वेश्चन, किसी ने इस पे सोचा नहीं होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। बाकी सारे टैक्स इम्पैक्ट वगैरह समझना है, जानना है, तो मैंने अपनी बुक में बहुत डिटेल में मेंशन किया है सारी चीजों को, ब्रीफ एंड कंसाइज वे में भी मेंशन किया गया है। आप वहाँ पे ये फ्लिपकार्ट, अमेजन, एवरीवेयर इट्स अवेलेबल, आप वहाँ ऑर्डर करें, बुक लाएं, और डिटेल में यदि आपको समझना है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन और इसकी टैक्सेबिलिटी, तो वहाँ पढ़ सकते हैं। हालांकि वो लंबी लेंदी टाइम है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। वी हैव बीन गिवन मैक्सिमम 1 hour 60 minutes फॉर दिस वेबिनार। सो अकॉर्डिंगली जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो दैट आई हैव ट्राइड टू कवर ओवर हियर। सो अब हम समझते हैं जीएसटी इनकम टैक्स के अलावा क्या कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट। सो कस्टम ड्यूटी दोस्तों लगता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। जैसे आपने कोई भी कंसाइनमेंट विदेश से ऑर्डर किया और वो आ रहा है पोर्ट के थ्रू, सी पोर्ट के थ्रू, एयर या एयर कार्गो के थ्रू आ रहा है, सो इन सब पे कस्टम ड्यूटी लगता है। यानी बाहर से कोई भी सामान इंडिया आ रहा है या इंडिया से कुछ गुड्स यदि बाहर जा रहे हैं जो नोटिफाइड है,
तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है, यानी इम्पोर्ट ड्यूटी इन केस ऑफ इम्पोर्ट। यदि आप गुड्स कोई बाहर से इंडिया में लेके आते हैं तो उसको कहते हैं इंपोर्ट, तो इंपोर्ट के केस में इंपोर्ट ड्यूटी लगता है या कस्टम ड्यूटी, इट्स अ टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटी, वो लगता है। और एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, बट ऑन वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए। देयरफॉर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज टैक्सेस लगभग ना के बराबर है, और सरकार कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे कि जो एक्सपोर्ट पे है वो टैक्स ना लगे, एक्सपोर्ट को टैक्स फ्री किया जाए। लेकिन आप देखें जो गुड्स फिजिकल नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक वे में आ रहा है। जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, अमेजन प्राइम पे मूवी देख रहे हैं, तो क्या उस पे टैक्स कस्टम ड्यूटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? सो दोस्तों, जो गुड्स इंटेंजिबल वे में आ रहा है, डिजिटल वे में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वे में आ रहा है, क्या उस पर कस्टम ड्यूटी लगना चाहिए? सो इसमें थोड़ा सा आपको समझा दूं कि एज पर WTO कंसेंसस, बहुत पहले कंसेंसस हुआ था, आई थिंक 1988 के करीब हुआ था। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक वे में गुड्स मंगाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर या वीडियो जो भी आप देखते हैं, मूवी वगैरह, इस पे मोराटोरियम है कस्टम ड्यूटी। कोई भी कंट्री उस पे कस्टम ड्यूटी कलेक्ट नहीं कर सकती। इसीलिए आज हम और आप सब लोग इजी बैठे बैठे अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे मूवी देख सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी भी फॉरेन सप्लायर से। हम जो भी सॉफ्टवेयर है वो भी ले सकते हैं जो अच्छा लगता है, मतलब कुछ भी डिजिटल गुड्स हम ले सकते हैं, उसको हम इंटेंजिबल गुड्स भी करते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन गुड्स के केस में, इसलिए मैंने बोला था गुड्स और सर्विसेज का डेफिनेशन समझो, वो केवल गुड्स के केस में हो सकता है। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी भी गुड्स के डेफिनेशन में आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सो गुड्स के केस में ही मोराटोरियम है, और उस पर हम जो भी डिजिटल वे में ले रहे हैं उस पर मोराटोरियम होने की वजह से कस्टम ड्यूटी नहीं पे कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही WTO में सारे मेंबर्स एग्री हो जाएंगे, इन कमिंग डेज वो उस पर कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। हालांकि इंडिया जैसे कंट्री को, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर का, जैसे मूवी जो भी हम इलेक्ट्रॉनिकली डाउनलोड कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो गुड्स की डेफिनेशन में आता है, उस पर कस्टम ड्यूटी का लॉस हो रहा है गवर्नमेंट्स को। So very soon, I think WTO members will take a decision on this. There may be consensus to remove moratorium on custom duty in case of digital imports. Similarly, क्या सर्विसेज जो आप लेते हैं, जैसे फॉरेन का डॉक्टर का एडवाइजरी लिया आपने किसी सीरियस केस में, बैठे डॉक्टर जो है फॉरेन में, इंडिया में नहीं है, तो क्या वो जो सर्विसेज है या कोई और सर्विसेज है, एजुकेशनल सर्विसेज ली, जिसके सप्लायर्स फॉरेन में बैठे हैं और आप इंडिया में ले रहे हैं, तो क्या उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है? दोस्तों मैं बता दूं, अंडर इंडियन कस्टम एक्ट सर्विसेज पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है। सो यहाँ पे ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट सर्विस के डेफिनेशन में आता है उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है, लेकिन इंटेंजिबल गुड्स के डेफिनेशन में आता है तो कस्टम ड्यूटी लगता है। सो हमने डिस्कस किया GST, इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस या ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, एंड होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट एंड यू मस्ट हैव रिसीव्ड सम गुड नॉलेज टुडे। तो अब इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर है, सो विल टेक सम क्वेश्चन आंसर फॉर 5 to 10 minutes max and we'll finish it up. Over to you. Ma'am, thank you. So thank you so much for joining this session, and thank you, sir, for giving us knowledge about the taxation, about the e-commerce, and what exactly the custom duties and how we are going to implement about it. Sir, me too. Thank you, sir, for knowledge, custom duty and income tax. Welcome. Thank you. So we are going to wind up our today's session here only, and it's a request to everyone. And so we are we wish to see you again with us, so enlighten us with more knowledge. And I'm going to share
a link with all of you in the chat box. I would suggest please once fill up the feedback link and help us with that. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much.